بھاگ جاتا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا. شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا. آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں. آ جاتا ہے ٹکتا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سبھی کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سبھی بہت ہی اچھے ہوں گے. ٹکتا نہیں. آ جاتا ہے ٹکتا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی. 40 سال. یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے. تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے. حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ. کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے. تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی. یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں. وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے. اس نے ایک نیا روپ دھار لیا. کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے. آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا. میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے. وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں. 2 قسم کے مہمان. ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے. پتہ نا آپ کو؟ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا. وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے. کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں. کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ اس کا یقین کامل ہو، اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی.
ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते हैं। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही बारी थी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्कत की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया, दयानतदारी से। वो काफिर था, मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा, और फलां जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां चीज भी लेकर के दूंगा। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाएं तो कितनी अजियत का और कर्ब का मसला होता है। फरमाते हैं जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया, और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। ये देखो, ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइज़ा कीला लहुम आमीन कमा आमनन नास। इस तरह का ईमान लाओ। हजरत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे? तो कहते बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था। तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा, कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो रोक दी जाए। तो ये दावे करना, नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती, उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया और कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई है, तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पे लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजिश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बाल आया।
पेशानी पे बल भी नहीं आया, और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही है। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मेरा अपनी अम्मा से बड़ा प्यार था और जमाना जानता था कि बड़ा प्यार है। मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरी अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि जब तक आप कलमा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह मैं रोटी नहीं खाऊंगी। थोड़ी सी आबादी थी, बरादरी में रहता था, बड़ा सा घर था, जमाना जानता था। फरमाते हर चौक में मेरी बातें होने लगी। तीसरा दिन हो गया, अम्मा ने रोटी नहीं खाई। अब अंदाजा कर लें कि शाम को इफ्तार के वक्त क्या हालत होती है आदमी की, खाना ना मिले तो। और तीसरा दिन हो गया और बूढ़ी अम्मा, हर चौक में बात हो रही, और साद की अम्मा, और मेरी माँ को भी पता था कि मैं जहां चाहूंगी मुझसे मोहब्बत करते या वहां आएगा। आप फरमाते हैं हर चौक में बात होने लगी, हर जगह लोग जिक्र करने लगे, बातें छिड़ गई, मेरी ही बातें, मेरे ही तज़किरे, मेरे बारे में इन लोगों का जिक्र। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं घर आया, मेरे बहन भाई भी मुझसे कहीं अम्मा मर जाएगी, मेरे वालिद भी, मेरे दीगर लोग भी, सब रिश्तेदार मेरे गिरदे। आप, मैंने कहा कि हम बातें कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, कभी अपने आप को उस जगह खड़ा करें कि जब हर आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाए कि मैं भाई तू खराबी कर रहा है, और इतने सारे लोग जानने वाले घेरा करेंगे तो आदमी कैसे बचाएगा अपने आप। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मेरे गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया, और मक्के का दौर है, हालात इतने खतरनाक हैं कि संभाले नहीं संभलते। आप फरमाते हैं जब हद हो गई तो मैंने कहा अम्मा सुनो फिर मेरी बात, मैं तुमसे बात करने लगा। कहते मेरे बहन भाइयों के भी कान खड़े हो गए। अम्मा भी सहारा लेके उठ के बैठ गई कि लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है, लगता है कि कुछ नरम हुआ है। फरमाते में सामने खड़ा हुआ, और थोड़े बहुत लोग जो वहां मौजूद थे वो भी करीब आ गए। मैंने कहा अम्मा तेरा और मेरा प्यार जमाना जानता है, और दुनिया को पता है कि मैं वो बेटा हूँ कि जिसकी लोग मिसालें देते हैं। अम्मा हर चौक में तेरी मेरी बातें हुई, इन 3 दिनों में तुझे और मुझे डिस्कस किया गया। अम्मा तू बड़ी कमजोर हो गई, उठ के तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सारी चीजें मेरे सामने आई, बहनों ने रो के दिखाया, भाइयों ने मोहब्बत याद कराई, हर चीज मेरे आड़े आई। लेकिन हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे अम्मा मैंने अपने दिल का जायजा लिया है, मेरे ईमान ने एक वक्त भी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि मैं अम्मा को मना लूं। फरमाने लगे अम्मा ये जमाना सारा मौजूद है और लोग खड़े हैं, तेरी एक जान है ना, एक जान अम्मा, तेरी एक जान है। अगर तेरी 1000 भी होती और एक एक करके सारी जानें तेरी निकल जाती तो फिर भी मैं अपने मदीने वाले महबूब का कलमा छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और तेरी मर्जी है तो रोटी खा, चाहे भूख हड़ताल कर, तू उठ के बैठ जाए, लेटी रहे। 1000 जान भी हो, एक एक करके निकल जाए तो ईमान पर सौदेबाजी हो सकती। वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। हजरत साद बिन अबी वकास ये नारा लगा के ना, नारा मस्ताना लगा के, ये नारा लगा के तो चले गए। हजरत साद बिन अबी वकास चले गए, आप बाहर निकले तो अम्मा उठ के बैठी, कहने लगी रोटी लाओ भाई। उन्होंने कहा अम्मा जी भूख हड़ताल बस। कहने लगी मेरा ही तो बेटा है ना, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैं रग रग से वाकिफ हूं। मैं जैसे कहती थी वैसे करता था, मैं जैसे चलाती थी वैसे चलता था। उसने कहा था ना इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे तो उसे तस्बीहों पे पड़ा करे, तो उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। फरमाने लगी कि मैं जानती हूं, मुझे पता है, मेरा बेटा है, मेरी गोद में पला बड़ा है, मैं जैसे कहती थी वैसे करता था। लेकिन अगर मेरे से बढ़कर भी किसी से प्यार करने लगा है तो कच्चा नहीं करने लगा, ये सच्चाई करने लगा है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मदीने के करीब ले जाके उम्मुल कुरा एक बस्ती थी,
انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے۔ کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں، پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا، تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے، تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے نا کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول۔ طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کبابٹ، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں، پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے مارا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈال جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں،
बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कुन फयकून अजे कल दी गल है, असा पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके की हैं। फरमाते हैं चूंकि निशानियां बताई थी ना, दो निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, कहा हुजूर सदके की हैं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही हैं। समझाया तो मुझे जा रहा है ना। कहा अबू बकर लोगों में तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते मौजें लग गई, मेरी मौजें लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते हैं मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोहर नबुव्वत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सियाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया, हुजूर के सामने बैठने लगा। हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया। जैसे ही मैं पीछे गया, हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोहर नबुव्वत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीम के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ाना जाएगा। सोनिया मैं अस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरी आया। हुजूर फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला, किसी के घर में सफाई करी, किसी के जूते साफ किए, किसी के कपड़े धोए, बेक बेक के आया हूं, बेक बेक के पहुंचा हूं। मुझे जम के कदम चूमने दे हुजूर, मुझे आज जी भर के ज़ियारतें करने दे।
फरमाते हुजूर ने उठाया और जब मेरे रसूल ने मेरा माथा चूमा, हुजूर ने जब मेरी पेशानी पे बोसा दिया, तो फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, फरमाते हैं फिर मैं जानूं और हुजूर। लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग उठे, कहने लगे उमर, जब से सलमान आया है यतीम बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें यतीम न कहे। जब से सलमान आया है भूखों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें भूखा न कहे। जब से सलमान आया है बेआसरा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अब हमारे पास बहुत बड़ा आसरा है। जब से सलमान आया है बेघरों को घर मिल गए हैं। कहा वो लाचार बीमार जिनके करीब कोई नहीं जाता था, सलमान उन्हें पास बिठा लेता है। खुदारा हमारा गवर्नर ना बदलिएगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे अंदर ताकतें नहीं रही। खुदारा, कभी ऐसा हुआ है कोई हुक्मरान जाए तो लोग रोए? रो रो के लोगों ने कहा खुदारा हमारा गवर्नर ना बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूं जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन अबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूं। हजरत, अब वो लोग पता क्या कहने लगे मदाइन के, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है, हमें वो गवर्नर मंजूर है, पर हमारी एक शर्त है, हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहायश मदाइन में रखेंगे। हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार। हज़रत सलमान ने कहा नहीं, मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारूंगा, मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए कि हज़रत फारूक आज़म भी रो पड़े। फरमाया ऐ सलमान आप वापस चले जाएं, इन लोगों का खुलूस आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा है, आप जाइए। हजरत सलमान फारसी मदाइन आ गए। जनाब साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। 3 लोगों के साथ हमेशा था। हजरत अबू दरदा तो विशाल कर गए, 3 लोगों से यराना रहा। एक हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से, एक हजरत साद बिन नबी वकास से चूंकि वो पास थे, और तीसरा अक्सर टाइम निकाल के मदीने जाते थे। किस लिए आए हो? कहा एक तो रोज़ा रसूल की जियारत करने आया हूँ और दूसरा मैं इमाम हसन से मिलने आया हूँ। सारी जिंदगी नबी पाक के नवासों के पास आते, बात कोई ना करते, जिक्र कोई ना करते। हुजूर के शहजादों के पास आते, इमाम हसन से हाथ मिलाते, इमाम हसन का चेहरा देखते रहते, आंसू बहाते रहते। कितनी देर खड़े रहते, इमाम हसन की जियारत करते, वापस चले जाते। जब बूढ़े हो गए, ज्यादा कमजोरी आई, तो हजरत साद बिन नबी वकास को पैगाम दिया। कहा किसी तरीके मदीने पैगाम भेजिए और इमाम हसन से कहिए मैं आपके नाना का नौकर हूँ, ताकत नहीं रही अब चल के मदीने आ सकूँ। उमर मुझे पाबंद कर गए थे कि मैंने, हजरत उस्मान का दौर आ गया कि मैंने अब मदाइन में वक्त गुजारना है। अगर हो सके तो आखिरी बार एक बार मुझे आके मिल तो जाएं। इमाम हसन आते हैं तो मुझे लगता है जलवाए मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो गई है। हज़रत साद बिन नबी वकास ने पैगाम भेजा। इमाम हसन वहाँ से चले, मदाइन आए। जैसे ही इमाम हसन दरवाजे से दाखिल हुए, बूढ़े हज़रत सलमान फारसी, बूढ़े, नकाहत इतनी है कि उठा नहीं जाता। इमाम हसन आए तो हज़रत सलमान फारसी ने रोना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया। उठना चाहा तो बिस्तर पे गिर गए। इमाम हसन करीब आए, चारपाई पे बैठे तो हज़रत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करे। इमाम हसन कहने लगे मैं जवान हूँ, आप बूढ़े हैं, दुआ आपको करनी चाहिए। कहा नहीं, आपसे दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि आपके नाना से जो वादे किए थे मैं पूरे नहीं कर सका। आप दुआ करें कि मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन कहने लगे वादा क्या किया था, क्या नहीं पूरा कर सके? अर्ज की हुजूर नबी करीम ने फरमाया था उतना माल पास रखना जितना मुसाफिर के पास होता है। ये हुजूर ने मुझसे कहा था, मैं वादा पूरा नहीं कर सका। देखिए मेरे घर में कितना माल है, कितना सरमाया है।
इमाम हसन कहते हैं मैंने माल देखा तो एक मटका पानी पीने का, 2 प्याले पानी पीने के, एक मशकीज़ा, एक चटाई वो भी टूटी हुई। फरमाते हैं मैंने कुल माल का हिसाब लगाया तो मैंने कहा हुजूर ये तो 15 दिनार से ज़्यादा नहीं बनेगा, रो क्यों रहे हैं? कहने लगा इमाम हसन से अजीब जुमले हैं, अजीब जुमले हैं। कहने लगे तबक़ात इब्न साद में, कहने लगे अच्छा अगर क़यामत के दिन रसूल पाक ने मेरी सरजनश फरमाई और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए तो ए सैयदा फातिमा के शहजादे आप सिफारिश तो करेंगे ना मेरी, आप मेरी सिफारिश तो करेंगे हुजूर की बारगाह में। हजरत साद बिन नबी वक़ास भी आए, रोना शुरू हो गए। कहा हाँ मुझे उम्मीद है कि आपकी सरजश नहीं होगी, आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत मिलेगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई। तवज्जो है आपकी? लोग कहते हैं तुमने आज ये इश्क के तराने ढूंढ लिए हैं, पता नहीं कहाँ से ले आए हो। वसीयत फरमाई इमाम हसन को। कहने लगे हुजूर मैं पुराना नौकर हूँ, पुराना नौकर हूँ और मैंने अपनी नौकरी करने की कोशिश की है, अब मैं बचूंगा नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी ख्वाहिश है कि सैयदा फातिमा का बेटा मेरा जनाजा पड़ा है। आज नहीं, ये आज नहीं, बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा। समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा। इमाम हसन ने जनाजा पढ़ाया और हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए। कहने लगे जाते जाते कोई नसीहत ही कर जाए। तो फरमाया 3 चीज़ों का ख्याल रखना, एक रवायत में 4 है, 3 का ख्याल रखना। या तो जिहाद के रास्ते में इंतकाल कर जाना, या जिहाद के रास्ते में इंतकाल कर जाना, या हज और उम्रे के रास्ते में मर जाना। ये ना हो सके तो कुरान सीखते सिखाते दुनिया से रुखसत हो जाना। फरमाया या जिहाद के रास्ते में जाना। हजरत सलमान फारसी वसीयत कर रहे हैं, ये वसीयत याद रखिएगा। या जिहाद के रास्ते में इंतकाल करना, या हज और उम्रे के रास्ते में। ये ना हो सके तो कुरान सीखते सिखाते जाना। उम्मीद है अल्लाह बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमा देगा। ये वसीयत फरमाई। जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल कर गए। अजीब सन्नाटा है। मदीने से नूर की जमात आ रही है जनाजा पढ़ने, नूर की जमात आ रही है, नूर की। हजरत उस्मान गनी खुद चल के जनाजे में शरीक हुए और सहाबा कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी हजरत उस्मान की। इमाम हसन के पीछे नमाज जनाजा पढ़ा और पढ़ के फिर उनकी मैयत के करीब हजरत उस्मान गनी गए। पहले तो सब्र का पहाड़ थे और जब करीब गए और जा कर के माथा चूमा और फिर जब सैयदना उस्मान गनी उठे तो मुकद्दस दाढ़ी से आंसू गिरने लगे। कहने लगे सलमान मैंने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा को तेरा माथा चूमते देखा है। सलमान मैंने अपनी आंखों से हुजूर को तुझसे प्यार करते देखा है। फरमाया लोगों आज सलमान रुखसत नहीं हुआ, हमसे इल्म रुखसत हुआ है, हिकमत रुखसत हुई है, हुजूर का महबूब रुखसत हुआ है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल के बाद एक दिन विसाल से पहले हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम से कहने लगे जो हम 2 दोस्तों में से पहले जाएगा वापस आके हाल बताएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे वापसी की इजाजत मिलेगी? कहा हाँ, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे उनकी रूहें कैद होंगी, जो अल्लाह के फरमा बरदार होंगे जहां चाहेंगे जाएं आएंगे। हजरत सलमान फारसी विसाल कर गए, जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम को मिले। फरमाया बताइए खुदा ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे रब ने फरमाया फरिश्तों सलमान से हिसाब ना पूछ लेना, फरिश्तों सलमान से हिसाब ना पूछ लेना, इसलिए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह है कि इनके दिल ने हमेशा मेरी ज़ात पे भरोसा किया, हमेशा मेरे ऊपर भरोसा करके रखा है, लिहाजा मुझसे कोई हिसाब नहीं लिया गया और बगैर हिसाब किताब मेरी बख्शिश कर दी गई। अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते, लोगों को तवाना करते, लोगों के दिलों के अंदर हुजूर मुसर्रत डालते। वाक्षी आ गए, वाक्षी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। कितना गम दिया नबी पाक को।
कितने आंसू बहाए रसूल करीम ने। तो जनाब वाक्षी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। मायूसी नहीं है यहां इस घर में किसी के लिए मायूसी। क्यों कच्ची बातें करते हैं भाई, क्यों कमजोर बात करते हैं? ओ जी मुझे ये ज्यादा डिप्रेशन कब फैलता है, ये ज्यादा एंजाइटी कब होती है लोगों को? कहते हैं जी मैं ही नाकाम क्यों हूं, फलाना आगे निकल गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया हूं? तो मैं कहता हूं मसलन आप क्या पीछे रह गए? आपका कद काठ है, आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, कद सब के हिसाब से बड़ा हुआ है, घर आप सोचते हैं पीछे आगे पीछे जाने का क्या मतलब समझते हैं? आपके पैसे हो तो बंदा आगे जाता है। कितने पैसे थे सैयदना बिलाल के पास बताओ? आपने गलत जगह को तरक्की का नाम दिया है। मैं आपको सैकड़ों लाखों हजारों लोग बता सकता हूं जिनको पैसे गिनने का वक्त नहीं है, लेकिन सुकून भी जिंदगी में कोई नहीं है, इत्मीनान कल्बी भी कोई नहीं है। किस चीज का नाम मेरे दोस्तों आपने सुकून रखा है? और आप ऐसे लोगों से मिले जिंदगी में जिनके पास पैसे हैं, सेहत नहीं, वो कहते हैं कुछ सारे ले जाए बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। पूछा था ना हजरत बहलोल दाना, पानी मांगा गर्मियों में हारून रशीद ने, तो पानी का प्याला करीब करने लगे तो बादशाह थोड़ी देर पहले बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बादशाह हूं, तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे एक बात तो बता, अगर पूरी सल्तनत में पानी ना मिले तो कितने को दे देगा तू? कहने लगा जी आधी सल्तनत दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो आप फरमाने लगे अगर ये पानी तो पिए और फिर खुदा न खास्ता तेरा ये पानी खराज ना हो, तकलीफ हो जाए, मसाने में पेशाब ना आए और तू दर्द से कर रहा है तो फिर क्या करेगा? कहने लगा जी अल्लाह माफ करे, उस वक्त तो दिल करेगा सारी सल्तनत दे दूं। फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में माँ बाप मौजूद हैं, ये भी तो कामयाबी है। रब ने औलाद दे रखी है, छोटी कामयाबी है। बहन भाई हैं, छोटी कामयाबी है। कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप दुनिया में घूम के देखें, पीएचडी की डिग्री रखता है, दुनियावी तौर पर इतना पढ़ा है और पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, समझदार है, लेकिन रात को जब खड़ा होता है तो माज़ अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मेरे प्यारे भाइयों, अभी अभी आपने पीर साहब के बयान को गौर व फिक्र से सुना है और सुन करके अपने ईमान को ताज़ा किया होगा। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को इनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती होगी। अगर वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और वीडियो को जितने भी इस्लामिक ग्रुप है उन सभी में शेयर किया करें, ताकि सभी लोग इनके बयान को सुन करके अपने ईमान को ताज़ा करें और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और नेकी करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।